Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter sequences and series. Now, if you can recall, in the last lecture, we had started with geometric progression, and before that, we had done arithmetic progression. All right. Now, what had we done in the geometric progression in the last lecture? We defined what is a GP. We said that ratio between consecutive terms is same in a GP. Then common ratio is denoted by R, and we did a lot of results on R, that what happens if R is positive, negative, 1, between 0 to 1, greater than 1. All right. And also we had done nth term of GP, then sum up to n terms of GP, then we also did sum up to infinity of GP, alright, and I also told you how to find kth term from end in GP, alright. Now in this lecture we are going to continue with geometric progression only. First of all, we are going to do properties of GP. If you can recall, we had done properties of AP also, alright. So you will see that properties are somewhat similar, but there is a difference also in a way that some of the properties are true in AP but not in GP, and some of the properties which are not true in AP are true in GP. So let's start this lecture now. So we are starting with properties of GP. Okay. So let me start. So let's write beta. We have properties of GP. Now, first property, let us see. In the first property, we will take a GP, alright. So suppose I have a GP given by A1, terms of the GP are A1, A2, A3 and so on. Now suppose common ratio of this GP is R, alright. So common ratio of this GP is R, and suppose K is any non-zero real number. Okay, K is non-zero real number. Then we are going to see what happens if you add all the terms, if you add K to all the terms, if you subtract K from all the terms, if you multiply all the terms by K, and if you divide all the terms by K. So A part we can take as that if we are adding K to each of the terms, A1 plus K, then we have A2 plus K, alright. So A1 plus K, A2 plus K, A3 plus K and so on. Now if in a GP you add same term to all the terms, then it is not always GP. तो in general बेटा ये GP नहीं होती. कोई भी आप GP लेके उसमें same term add करके देख लो तो new sequence is not always GP. Similarly, if you are subtracting K from all the terms, alright, A1 minus K, A2 minus K, A3 minus K and so on, then this is also not always GP. तो ये भी बेटा हमेशा GP नहीं होती है. Alright. Now let's see what happens if we multiply each term by K. तो मान लो हमारे पास new terms हैं KA1, K times A2, K times A3 and so on. तो अगर GP की हर टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हो ना सेम नंबर से, तो आपको GP मिलेगी. ठीक है. और कॉमन रेशो अगर आप देखो ओरिजिनल जीपी की अगर आपकी आर है, ठीक है, ये वाली जो जीपी थी हमारी A1, A2, A3, अगर इसकी बेटा कॉमन रेशो आर है तो आर का मतलब क्या था, रेशो बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स A2 बाय A1, A3 बाय A2. तो इसमें भी अगर आप देखो अगली टर्म को अगर आप पिछली टर्म से डिवाइड करते हो तो K कैंसिल हो जाएगा ना, तो A2 बाय A1 आ जाएगा विच इज R. तो इसमें कॉमन रेशो जो है ये GP रहेगी और कॉमन रेशो इसकी क्या रहती है, R ही रहती है. सिमिलरली इफ यू डिवाइड ईच टर्म बाय K, देखो A1 अपॉन K, A2 अपॉन K, A3 अपॉन K एंड सो ऑन. तो अगर हम हर टर्म को K से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर से हमारी सीक्वेंस GP होगी. और इस केस में भी कॉमन रेशो क्या रहेगी, R रहेगी. क्यों R रहेगी, देखो क्योंकि अगर आप इस टर्म से इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो A2 by A1 which is R only. Alright. So in these two cases common ratio will remain R. इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, ई पॉइंट, कि अगर आप हर टर्म की पावर K लेते हो, A1 की पावर K, A2 की पावर K, A3 की पावर K, जैसे आपने हर टर्म की स्क्वेयरिंग कर दी या हर टर्म की क्यूबिंग कर दी,
तो न्यू सीक्वेंस फिर से हमारी क्या रहती है, जीपी रहती है बेटा। तो न्यू सीक्वेंस विल अगेन बी अ जीपी। अब देखो इस केस में कॉमन रेशो हो जाएगी r की पावर k, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे, है ना, a2k बाय a1k, तो a2 अपॉन a1 की होल पावर k मतलब r की पावर k। ऑलराइट, इसी का एक स्पेशल केस लेते हैं। तो इसमें तो हमारी कॉमन रेशो हो गई r की पावर k, और इन तीनों में न्यू सीक्वेंस फिर से क्या है, जीपी है। अब जो मैंने ई पार्ट लिखा है ना, इसका एक स्पेशल केस लेते हैं। कौन सा स्पेशल केस, देखो जरा, मान लो हमने लिया 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2, 1 अपॉन a3, मतलब हर टर्म का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अब रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या है कि पावर -1 ले रहे हो। तो एक तरह से ये जो ई वाला केस है जिसमें हमने पावर k लिए बेटा, अगर k -1 हो गया मतलब वी आर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म। और फिर से यहाँ पे जो न्यू सीक्वेंस है हमारी जीपी बनेगी बेटा, और कॉमन रेशो हो जाएगी 1 अपॉन r। Is it okay? तो in this case also new sequence will be GP and common ratio will be 1 upon R. Okay? So this is the first property of GP. Alright? AP में क्या हो रहा था? AP में तो अगर आप हर टर्म में सेम नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो AP मिलती है, पर उसमें पावर लेने पे AP नहीं मिलती जो कि GP में मिलती है। Alright? अब आगे चलते हैं इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी। Now let us talk about the second property. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर हम 2 जीपीज लेते हैं, ठीक है, लेट मी टेक 2 जीपीज। अब देखो मान लो हमारे पास जो फर्स्ट जीपी है वो मान लो हमारे पास ये है a1, a2, a3 एंड सो ऑन, और सपोज इसकी कॉमन रेशो है r1। इज इट ओके? और एक मान लो हम लेते हैं सेकेंड जीपी, सपोज इट इज गिवन बाय b1, b2, b3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी जीपी, और सपोज इसकी कॉमन रेशो जो है वो है दैट इज r2। ठीक है, सपोज द कॉमन रेशो ऑफ द सेकेंड जीपी इज r2। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ यू ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहला केस लेट अस टेक व्हेन वी आर एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। सो इफ यू ऐड 2 जीपीज ना, then new sequence is not always GP। तो अगर आप एग्जाम्पल में कोई भी 2 GPs लेके देख लो, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करोगे तो हर बार आपको GP नहीं मिलेगी। सिमिलरली B पार्ट, A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 and so on, that means we are subtracting the corresponding terms। तो इसमें भी जो न्यू सीक्वेंस है that is not always GP, तो वो हमेशा जीपी नहीं होती। सी पार्ट लेते हैं बेटा, जब हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a1 b1, a2 b2, a3 b3 एंड सो ऑन। तो जब मल्टीप्लाई करते हो 2 जीपीस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो न्यू सीक्वेंस इज अ जीपी। इतना ही नहीं, in this case common ratio will be equal to product of the original 2 GPs, that is R1 and R2। तो मतलब अगर first GP आपकी ये है A1, A2, A3 and so on and its common ratio is R1, second GP is B1, B2, B3 with common ratio R2, then if you are taking the product of terms, then new sequence is GP and common ratio also gets multiplied। Now same thing will happen if you divide the corresponding terms, like I have a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3 and so on। ठीक है, अगर हम ये कर रहे हैं तो फिर से न्यू सीक्वेंस क्या होगी, जीपी होगी। और इसमें जो कॉमन रेशो है वो भी बेटा कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन रेशोज डिवाइड हो जाएंगी, तो इट विल बी r1 upon r2। Alright, so in division also we get new sequence to be GP with common ratio R1 upon R2। AP में देखो रिवर्स था। AP में अगर आप दोनों टर्म्स को अगर आप ये कर रहे थे ना, ऐड कर रहे थे, तो न्यू सीक्वेंस AP थी, सब्ट्रैक्ट करने पे भी AP थी, अगर आपकी ओरिजिनल सीक्वेंसेस AP हैं। बल्कि AP में अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे ना कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो AP नहीं थी। GP में क्या हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे नॉट ऑलवेज जीपी, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यू विल ऑलवेज गेट जीपी। इज इट ओके?
लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी नाउ। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं हम यहां पे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये होगी कि इन अ जीपी ऑफ एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम एक जीपी लेते हैं ना ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की, ऑल राइट, तो इन अ जीपी ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, जैसे एपी में सम होता है ना, यहां प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज सेम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम, मतलब अगर आगे से पहली तो पीछे से पहली, आगे से दूसरी तो पीछे से दूसरी, तो फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड इज इक्वल टू किसके, देखो, एंड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, एंड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म। तो यहां पे मिडिल टर्म का बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो इसी टाइप की प्रॉपर्टी हमने एपी में करी थी, पर वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे, सम ऑफ टर्म्स की बात कर रहे थे बेटा। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड। तो एक तो जीपी देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की ले रहे हैं, दूसरा इसमें सम के बजाय प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड सेम होता है और किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल से इसको बेटा समझते हैं। मान लो हम एक जीपी लेते हैं, सिंपल सी जीपी लेते हैं 1 2 4 8 16, ऑल राइट। फिर मान लो 32, कितनी टर्म्स हो गई, एक और ले लो 64। तो यू कैन सी दीज आर 7 टर्म्स, ठीक है ना। तो हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले लें। अब हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट इनका ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड। अब देखो 1 into 64, इनका प्रोडक्ट कितना है, 64, आगे से पहली और पीछे से पहली, फिर आगे से दूसरी पीछे से दूसरी, ये इनका प्रोडक्ट 2 into 32 भी कितना है, 64, फिर आगे से तीसरी पीछे से तीसरी लो, 4 into 16 is 64। अब आप नोटिस करो यहां पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल में एक ही टर्म बच रही है, और अगर हम उसका स्क्वायर देखेंगे 8 का स्क्वायर, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 64। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही है कि अगर एक जीपी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की है तो मिडिल में एक टर्म होएगी, तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज सेम एंड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म। इसका ना एक स्पेशल केस भी है, वो देखो अब। सो लेट मी राइट स्पेशल केस फॉर दिस। वो क्या है वो देखते हैं। तो लेट अस लुक एट स्पेशल केस ऑफ दिस। स्पेशल केस इसमें यह हो जाएगा कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, अगर हमारे पास ए बी सी बेटा जीपी में है तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गई ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट विल बी स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म। तो इसका मतलब वी विल गेट बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी। तो पहली और आखिरी का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म का स्क्वायर होगा। तो रिमेंबर, व्हेनेवर 3 टर्म्स आर इन जीपी, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। अब देखो इस प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे थे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक है ना। यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम बात करेंगे इसी प्रॉपर्टी की जिसमें हम बात करेंगे ऑड की बजाय इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ऑलराइट, सो लेट अस डू दैट। तो अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट। वी विल से इन अ जीपी ऑफ, फोर्थ प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू टेक, यस, सो इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स की हम जीपी ले रहे हैं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी हम क्या लेंगे बेटा, प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो वी विल से द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज सेम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम beginning and end
is same and is equal to what? It is equal to product of two middle terms and is equal to product of two middle terms. Now let us see. अब देखो इसमें फिर से जीपी की बात हो रही है, लेकिन इस बार इवन नंबर ऑफ टर्म्स है. एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट. किन टर्म्स का प्रोडक्ट? टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड. तो वो सेम होगा, और क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल में दो टर्म्स होंगी, तो इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहां पे बेटा. मान लो हमने लिया यहां पे 1 2 4 8 16 32. ठीक है, ये ले लो. तो आप नोटिस करो वी हैव टेकन 6 टर्म्स विच आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स. तो देखो आगे से पहली पीछे से पहली, इनका प्रोडक्ट है हमारा 32. फिर आगे से दूसरी पीछे से दूसरी, इनका प्रोडक्ट भी कितना है? 32. फिर आप देखो मिडिल में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं. इज इट ऑल राइट? तो मिडिल में जो 2 टर्म्स हैं ये वाली, इनका प्रोडक्ट भी हमारा कितना है? 32. ऑल राइट. सो product of terms equidistant from beginning and end is same and is equal to product of two middle terms. ठीक हो गया? अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं. Let me write the next property now. Property number 5. अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ना, it is very important, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी क्या है कि if log x to the base a then log y to the base a and log z to the base a are in AP. तो if these three terms are in AP then, अब आप नोटिस करो we have same base. ठीक है, तो अगर आप log हटा दोगे तो जो terms are remaining x y z they are in GP. ठीक है. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. कन्वर्सली देखो हमें क्या मिलेगा, इसका कन्वर्स अगर हम देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? तो वी विल से कन्वर्सली इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, अगर आपके पास 3 टर्म्स जीपी में है बेटा, देन इफ वी टेक लॉग टू द सेम बेस इन ऑल द 3 टर्म्स, सो देन वी हैव लॉग एक्स टू द बेस ए, log y to the base a, log z to the base a are in AP. Is it okay? तो जब भी आपके पास 3 टर्म्स विथ सेम बेस ऑफ log AP में है, log हटाने पे वो टर्म्स हमारी किस में हो जाएंगी? GP में. तो ये देखो जैसे, तो अगर हमारे पास log x to the base a, log y to the base a, log z to the base a AP में है, log हटाया तो x y z हो गए GP में. कन्वर्सली अगर आपके पास x y z GP में है तो log to the same base ले लो, तो जो नई 3 टर्म्स आएंगी वो किस में हो जाएंगी? AP में. Is it okay? Now let's write the next property, property number 6. तो 6 प्रॉपर्टी लेते हैं अब हम. 6 प्रॉपर्टी हमारी ये होगी, ये एपी में भी ट्रू थी. देखो प्रॉपर्टी ये है, इफ टर्म्स ऑफ जीपी आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स, इफ टर्म्स ऑफ जीपी आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स, then new sequence formed is again GP. all right, वो फिर से हमारी क्या होगी? GP होगी बेटा. अब देखो ये प्रॉपर्टी इफ यू कैन रिकॉल वी हैड डन इन AP ऑल्सो. ठीक है ना, कि अगर हम AP की टर्म्स को बेटा रेगुलर इंटरवल्स पे लेते हैं ना, तो न्यू सीक्वेंस फिर से AP थी, ऐसे ही GP में. एक एग्जांपल देखो जरा. सपोज GP है हमारी 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड सो ऑन. ठीक है. अब देखो इस GP में कॉमन रेशो कितनी है आपकी? 2 है. 2 इज द कॉमन रेशो. अब हम एक काम करते हैं, एक एक टर्म छोड़ के लेते हैं, जैसे 1 4 16 64 256. तो आप नोटिस करो ये वाली जो टर्म्स हैं बेटा 1 4 16 64 एंड सो ऑन, दीज आर अगेन इन जीपी.
और क्योंकि एक टर्म छोड़ के ले रहे हैं ना, तो कॉमन रेशो इस केस में 2 का स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4। और एक केस देखो, जैसे सपोज आपने यहां पे 2 टर्म्स छोड़ के लिया, जैसे 1 ले लिया, फिर 8 ले रहे हैं, फिर 2 टर्म्स छोड़ो 64, फिर 2 टर्म्स छोड़ो 512। अब की बारी न्यू सीक्वेंस क्या है, 1 8 64 512 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज अगेन अ जीपी, रेगुलर इंटरवल्स पे ले रहे हैं और इसमें 2 टर्म्स आप बीच में छोड़ रहे हो ना, तीसरी टर्म आ रही है, तो कॉमन रेशियो विल बी 2 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8. So if terms of GP are taken at regular intervals, then new sequence formed is again a GP beta. Is it okay? So these are some of the properties of GP. Now before we move on to the questions, एक और चीज देखो, selection of terms in GP. This also we had done in AP. तो यहां पे देखते हैं, ठीक है? तो let us see. तो let me now just take selection of terms in GP. तो अब हम इसकी बात करेंगे, selection of terms in GP. अब पता है, जैसे यूजली अगर हमें GP लेनी होती है तो हम क्या लेते हैं, हम ये लेते हैं ना कि ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, कॉमन रेशो आर लेते हैं। तो यूजली द जीपी टेकन बाय अस इज ऑफ द फॉर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, यही होती है। तो इस टाइप की हमने जीपी ली होती है। अब अगर इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स गिवन हो, पहला केस इसमें हम क्या लेंगे कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स गिवन है जीपी में, तो पता है हमें टर्म्स क्या लेनी चाहिए। जैसे एपी में अगर सम गिवन होता है, हम टर्म्स ऐसी लेते हैं कि ऐड करने पे डी कैंसिल हो जाए, है ना, तो ए की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाती है और क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। जीपी में अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है ना 3 टर्म्स का, ठीक है, तो फिर आपको टर्म्स ऐसी लेनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे आर कैंसिल हो जाए। अब आप नोटिस करो, इफ वी टेक दीज 3 टर्म्स ए आर स्क्वायर, अगर ये लेते हो तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब, आर कैंसिल थोड़ी ना हुआ, आर स्क्वायर तो क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो व्हाट वी डू इज, जीपी में देखो, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी मल्टीप्लाई बाय आर। अगर आपको इससे एक पिछली टर्म चाहिए तो r से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ इफ वी आर टेकिंग दीज 3 टर्म्स इन जीपी, a बाय आर, a और ar, ठीक है, ये वाली 3 टर्म्स, सो यू कैन सी ऑन मल्टीप्लाइंग देम, ये वाला r इस r से कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब आ जाएगा तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। सो दैट इज व्हाई वी टेक 3 टर्म्स, इफ प्रोडक्ट इज गिवन वी टेक द टर्म्स टू बी a बाय r, a एंड ar, ठीक है। इसी में पहले देखो 5 का कर लेते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स जीपी में गिवन है, राइट, इफ वी आर गिवन प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, और याद रखना ये टर्म्स तभी लेनी है जब प्रोडक्ट गिवन है, सम में लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि सम में आर कैंसिल नहीं ना होगा, वो तो प्रोडक्ट में कैंसिल हो रहा है। अब अगर 5 टर्म्स लेनी है, देखो यहां पे, तो जैसे अगर हम इन टर्म्स को देखें, a बाय आर, a और ar, इनमें तो r कैंसिल हो रहा था, तो जैसे आगे गए तो r से मल्टीप्लाई होके ए आर स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, पिछली टर्म क्या हो जाएगी, a बाय आर स्क्वायर। नाउ इफ वी टेक दीज 5 टर्म्स, a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a आर स्क्वायर, ये 5 टर्म्स अगर आप लोगे ना, तो ये r स्क्वायर इस r स्क्वायर से कैंसिल, ये वाला r इस r से कैंसिल, तो हमें a5 मिलेगा, तो दैट विल गिव अस डायरेक्टली वैल्यू ऑफ a। तो 5 टर्म्स अगर गिवन होंगी उनका प्रोडक्ट जीपी में, तो वी विल टेक टर्म्स एज a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a आर एंड a आर स्क्वायर, राइट। नाउ लेट्स सी इफ वी आर गिवन हाउ मेनी, प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 4 टर्म्स। तो इफ वी आर गिवन प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स, 4 टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हमें गिवन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कितनी टर्म्स की, 4 टर्म्स की। अब आप सोचोगे कि अगर 4 टर्म्स लेनी है तो क्या हम ये ले सकते हैं, देखो ये वाली a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a आर और a आर स्क्वायर, हमें लगेगा कि अगर हम ये 4 टर्म्स ले रहे हैं, दीज 4, तो इनमें r कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से, आर से, पर ये जो मैंने हाईलाइट करी है ये टर्म्स जीपी में नहीं है, क्योंकि बीच में a मिसिंग है। तो अगर आप 1
2, फिर ये 3 और 4 लेते हो, these terms are not in GP, रेशो सेम नहीं है. तो how do we take the 4 terms in GP? A by R cube, A by R, A into R and A into R cube. All right? हम ये 4 terms लेते हैं. अब इनमें पता है कॉमन रेशो कितनी है? R स्क्वायर है. पिछले केसेस में जो हमने टर्म्स लिए बेटा, उनमें कॉमन रेशो कितनी है? R है. पर यहां पे इस केस में कॉमन रेशो इज R स्क्वायर. सो इफ वी आर गिवन प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स, वी विल टेक टर्म्स एज A by R cube, A by R, AR and AR cube. Okay? So that is what we have to remember so that we are able to do the questions easily. अगर देखो इनमें सम गिवन होगा ना, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर प्रोडक्ट की बजाय सम ऑफ टर्म्स इन जीपी सिर्फ गिवन है, प्रोडक्ट नहीं गिवन है, तो फिर आप ओरिजिनल यहां से शुरू करो, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. तब पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐड करने पे आर से आर कैंसिल नहीं हुआ करते बेटा. राइट? So we have now done properties of GP and we have done this selection of terms in GP. All right. Now let us do some questions based on them. ठीक है ना? तभी पता चलेगा कि जो हमने किया है उसके ऊपर हमारे जेई मेंस में या किसी और कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. All right. Now look at the first question. अब देखो, you can see the first question on your screen. Let's read it. You are given that sum of first 3 terms of a GP is S. एक जीपी में पहली 3 टर्म्स का सम S अगर है और उनका प्रोडक्ट 27 है, तो आपको बताना है वो सम किस इंटरवल में लाई करेगा. अब आप एक चीज देखो इस क्वेश्चन में. नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सम बट वी आर गिवन द प्रोडक्ट. और किसकी बात हो रही है? जीपी की. तो अगर हम जीपी की बात कर रहे हैं ना और उसमें प्रोडक्ट गिवन है, और ये क्वेश्चन भी देखो किसमें है? जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है. ठीक है, एज यू कैन सी. तो इफ यू आर गिवन द प्रोडक्ट और 3 टर्म्स की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टर्म्स, तो वी शुड बी टेकिंग 3 टर्म्स एज A by R, A and AR. है ना? अभी अभी हमने किया है. तो लेट्स डू द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नाउ. सो लुक एट द सोल्यूशन. है ना? समझ के करते हैं. तो 3 टर्म्स जीपी में दी हैं और प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो वी विल से let 3 terms in GP be A by R, A and AR. तो सबसे पहली कंडीशन यूज करते हैं कि their product is equal to 27. प्रोडक्ट 27 है, that means A by R into A into AR will be 27. Now here R will get cancelled. So I am getting what? A cube कितना आ गया? 27 का मतलब 3 का क्यूब. All right. So that gives us value of A as 3. तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म आ गई, that is फर्स्ट टर्म नहीं बोलेंगे, एक तरह से मिडिल टर्म है A, वो हमारे पास 3 आई है क्योंकि जीपी हमने A से नहीं A by R से स्टार्ट करी है. All right. अब देखो आगे बात कर रहे हैं सम की. सम को दे आर डिनोटिंग बाय S. Can you see? Sum is denoted by S. तो इन्हीं 3 टर्म्स का जब हम सम लेंगे तो उसको वो S से डिनोट कर रहे हैं. तो सम क्या हो गया? A by R प्लस A प्लस AR. Is it okay? अब देखो वो पूछ रहे हैं कि S किस इंटरवल में लाई करेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? Let us see. यहां पे देखो A की वैल्यू 3 आई है ना, ये देखो वी हैव वैल्यू ऑफ A as 3, वो यहां पे पुट करेंगे. उसके लिए आप चाहो तो पहले A क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो. तो टेक A कॉमन, वी हैव 1 by R प्लस 1 प्लस R. सो व्हाट हैव वी डन? वी हैव टेकन A कॉमन. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ A. सो आई हैव S इक्वल टू 3 टाइम्स R प्लस 1 by R प्लस 1. S हमारे पास ही आ गया. ठीक है. अब हमें यह पता लगाना है कि S कहां लाई कर रहा है. इंटरवल बताना था ना S का. अब आप एक चीज नोटिस करो, आपको मैंने बताया था जब जीपी स्टार्ट करी थी कि R हमारा 0 नहीं होता. R इज नॉट इक्वल टू 0. तो या तो R आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से देखना कि जब हमारे पास R पॉजिटिव है, इफ R इज ग्रेटर देन 0, देन जब भी किसी पॉजिटिव नंबर में आप उसका रेसिप्रोकल ऐड करते हो ना, देन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.
तो वो 2 या 2 से बड़ा होता है। तो इस केस में हम s को देखते हैं कि अगर r पॉजिटिव है, देखो तो यहां पे बात हो रही है ना r प्लस 1 बाय आर की, तो r प्लस 1 बाय आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो s क्या हो गया, s विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि r प्लस 1 बाय आर की मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। या r प्लस 1 बाय आर 2 होगा या उससे बड़ा होगा। तो s की मिनिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे बाय पुटिंग r प्लस 1 बाय आर एस 2। सो दैट मीन्स वी गेट s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो एक कंडीशन बेटा ये आई है, कॉल इट एज 1, ऑलराइट, कि s विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। नाउ दिस वाज व्हेन r इज पॉजिटिव। ये तब था ना जब हमारा r क्या है बेटा, पॉजिटिव है। अगर r नेगेटिव है तो देखो क्या होगा, इफ r इज नेगेटिव तब आपके पास किसी भी नेगेटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो ये आप मैक्सिमम मिनिमा से इजीली निकाल सकते हो। तो r प्लस 1 बाय आर, और इसको ना पता है एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखो, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है कि अगर आपका कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हो तो वो 2 या 2 से बड़ा होगा, और अगर आपका वो नंबर नेगेटिव है उसमें आप उसका रेसिप्रोकल बेटा ऐड करते हो तो r प्लस 1 बाय आर विल बी लेस देन इक्वल टू -2, मतलब -2 उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। आप देखो हमारे पास s क्या था, s was equal to 3 into r plus 1 upon r plus 1। अब हम ये रिजल्ट यूज करते हैं तो दैट मीन्स s इज लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 1, राइट। ये कैसे आया, हमने r प्लस 1 बाय आर की ले ली कौन सी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू विल बी -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि s इज लेस देन और इक्वल टू -3, ये हो गया, call it as 2। तो from 1 and 2 let's see what do we get। so we will say from 1 and 2, from 1 and 2, right, we can say that either s is less than equal to -3 or s is greater than or equal to 9। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे देखो क्या हो गया, या तो s -3 है या उससे छोटा है, या फिर s 9 है या 9 से बड़ा है। तो s किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, देखो s बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ टू -3 क्लोज्ड इंटरवल एंड देन यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 9 टू ∞। तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा, दिस इज द इंटरवल इन विच s इज गोइंग टू लाई, -∞ टू -3 यूनियन 9 टू ∞। लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ। ये देखो तो यू कैन सी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये देखो -∞ टू -3 यूनियन 9 टू ∞, है ना। तो इसमें डी ऑप्शन हमारी करेक्ट आ जाएगी। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व कि अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है, 3 टर्म्स की बात हो रही है, तो वी शुड बी टेकिंग 3 टर्म्स एज a by r, a and ar, so that after multiplying r gets cancelled। Alright, let's move on to the next question now. Now you can see the next question on your screen. Let's read the question first. We have if 1 log to the base 3 under root of 3 की power 1 minus x plus 2 log to the base 3 4 into 3 raised power x minus 1 are in AP. Then you have to tell x किसके equal होगा। Alright, so let's start the solution for this question, and you can see this question is from AEEE 2002. So now we are going to do the solution for this question. अब सबसे पहले इसमें what is given? We are given that 1 log to the base 3 under root of 3 raised power 1 minus x plus 2, then log to the base 3 4 into 3 raised power x minus 1, ये टर्म्स हमारी एपी में है। अब आपको याद होगा just before this question which we did before that when we were doing properties of GP, हमने एक प्रॉपर्टी करी थी। क्या प्रॉपर्टी की थी? Let us recall. I told you the property was कि अगर आपके पास log x to the base a, log y to the base a और log z to the base a AP में है,
तो सेम बेस है अगर और आप log हटाते हो तो दिस इंप्लाइज x y z आर इन GP. तो दिस प्रॉपर्टी वी वुड लाइक टू यूज हेयर ताकि हमारा log हट जाए. अब आप देखोगे कि यहां पे भी log टू द बेस 3 है बेटा, यहां भी log टू द बेस 3 है. अब 1 को भी log टू द बेस 3 में लिखना है तो हाउ कैन वी राइट इट? तो इसका मतलब हमारा ये हो गया 1 कैन बी रिटन एज log 3 टू द बेस 3. So we have log 3 to the base 3 log under root of what? 3 raised power 1 minus x plus 2 to the base 3. फिर log 4 into 3 raised power x minus 1 to the base 3. These 3 terms are in AP. तो अब हमारे पास तीनों टर्म्स में बेस बेटा सेम है तो log हटा दो. log हटा दिया तो that means it implies that 3 comma under root of 3 into 1 minus x plus 2 and 4 into 3 raised power x minus 1 are in GP. तो ये तीन टर्म्स GP में हो गई तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की. नाउ आज ही हमने एक प्रॉपर्टी में कहा था कि अगर एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की GP होती है तो याद है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज सेम और किसके इक्वल था? स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म. उसका एक स्पेशल केस भी किया था क्या कि अगर ABC GP में है तो B स्क्वायर क्या होगा? A इंटू C. तो उसको अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स हैं देखो तो लेट अस सॉल्व फर्दर. तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास हो गया कि अगर ये GP में है तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म तो अंडर रूट हट जाएगा तो आई हैव 3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो 3 इंटू 4 इंटू 3 रेज पावर एक्स माइनस 1. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब इसको सॉल्व करना है. अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं. जैसे 3 की पावर 1 माइनस एक्स का मतलब क्या है? देखो 3 अपॉन 3 रेज पावर एक्स, यही मीनिंग है ना. एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 3 into 4 into 3 raised power x minus 1. Now it will be easier to solve if we take 3 raised power x as t. ये वेरिएबल है ना तो 3 raised power x को आप क्या मान लो? t मान लो. तो let us assume let 3 raised power x be equal to t. पुट करते हैं तो we have 3 upon t plus 2 is equal to 3 into 4t माइनस 1. ये आ गया. नाउ लेट अस सॉल्व. अब इसको सॉल्व करना है, t की वैल्यूज निकालनी है बेटा. सो व्हाट डू आई गेट? वी गेट 3 अपॉन t, यहां पे एलसीएम ले लो तो 3 प्लस 2 टाइम्स t इज इक्वल टू 12t एंड माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 3 प्लस 2 टाइम्स t इज इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 3t. क्वाड्रेटिक बन गई. प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं तो 12t स्क्वायर माइनस 5t एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 36 है तो क्या आएगा? 4 9 36 होता है तो आई हैव 12t स्क्वायर, यहां पे 12t स्क्वायर माइनस 9t right plus 4t and minus 3 is equal to 0. First two terms we have 3t common, we are left with 4t minus 3. Then minus 1 common, 4t minus 3 is equal to 0. तो factorize हो गया. What are we getting? We are getting over here that 3t minus 1 into 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो या तो देखो ये वाला फैक्टर 0 होगा विच विल गिव अस वैल्यू ऑफ t एज 1/3 और दिस फैक्टर विल बी 0. दिस विल गिव अस t एज 3/4. इज इट ओके? सो वी हैव दिस. सो आइदर t इज 1/3 और इट इज इक्वल टू दिस. ठीक है ना. अब देखो इसमें क्या, सॉरी यहां पे ना ये +1 है तो यहां पे प्लस है तो ये माइनस आएगा. ऑलराइट. नाउ व्हाट वाज t? 3 रेज पावर x. अब देखो आपको पहले भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव. राइट. इनइक्वालिटीज में भी हमने ये बात करी हुई है. ऑलराइट. तो इसका मतलब ये हो गया कि t ये वाली वैल्यू तो ले ही नहीं सकता, नेगेटिव वाली. तो ये केस हमारा क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया.
That means I am getting here that 3 raised power x is equal to how much? 3/4. अब पता है जब भी आपके पास ओरिजिनल टर्म्स लॉग में हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, इसको अगर आपने कंसिडर नहीं किया तो बहुत बच्चे अपनी ऑप्शंस गलत करवा लेते हैं. ऑलराइट, देखो किस बात का ध्यान रखना होता है. आपको डेफिनेशन ऑफ लॉग पता है कि जब भी हम बात करते हैं log x टू द बेस a की, तो लॉग डिफाइंड कब होता है? जब x पॉजिटिव हो. ठीक है ना? तो कब डिफाइंड होता है बेटा? जब हमारा x क्या होता है? पॉजिटिव. इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव. अब 3 रेज पर x देखो 3/4 आया है ना. ओरिजिनल टर्म्स देखो हमारे पास क्या थी, तो ये ऑब्जर्व करो, दीज वर दी ओरिजिनल टर्म्स. ये तो चलो कांस्टेंट ही है 3, ठीक है, ये है और ये है. तो 3 रेज पर x की वैल्यू अगर 3/4 है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कहीं लॉग नेगेटिव या जीरो तो नहीं आ रहा किसी नंबर का. तो पहले में तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना. 3 की पावर 1 माइनस एक्स क्या बनेगा? 1 माइनस, यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे, देखो इस जगह पे, यहां पे x पुट करोगे 3/4, तो 3 की पावर 1 माइनस 3/4, 1/4 प्लस 2 पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो ये डिफाइंड है, इसका लॉग डिफाइंड है. यहां पे देखो 3 रेज पर x इज 3/4, 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2, तो log 2 भी डिफाइंड है. और यहां पे तो वैसे ही कांस्टेंट है. तो अगर हमारे पास 3 रेज पर x की वैल्यू बेटा 3/4 है, तो दैट मीन्स कि log वाली टर्म्स डिफाइंड है. तो इसका मतलब x ये वैल्यू ले सकता है, x कैन टेक दिस वैल्यू. अब आप निकालोगे कैसे? डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज करके. अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास log x टू द बेस am होता है, तो व्हाट डज इट मीन? यहां से x कितना आता है? x इज इक्वल टू, या इसको रिवर्स लेती हूं चलो पहले मैं, कि इफ यू हैव a रेज पर x, क्योंकि मेरा x अभी किस में है? पावर में है ना. तो सपोज आई हैव a रेज पर x इज इक्वल टू m. मान लो मेरे पास ये, अगर x पावर में होता है तो x की वैल्यू निकालते कैसे हैं? इट इज इक्वल टू log m टू द बेस a. दैट इज हाउ वी फाइंड x. तो सेम चीज यहां पे हो जाएगी. तो x विल बी इक्वल टू log टू द बेस 3/4. अब देखो इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम थोड़ा अप्लाई कर लो. log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n. तो वी कैन राइट इट एज log 3 टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3. Now all of you know what is log 3 to the base 3? 1. जब ये होता है log a to the base a, you know that log a to the base a is always equal to 1, because by definition a raised power 1 will be a. So that means I get x is equal to 1 minus log 4 to the base 3. तो this is going to be the solution. तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 minus log 4 to the base 3. All right, so let's check the option. Let's see which option is correct. 1 minus log 4 to the base 3. So you can see here beta B option will be correct. 1 minus log 4 to the base 3. Got it? So we have used this important property that if log x, log y, log z are in AP, if you remove log x, y, z are in GP. और एक मैंने बताया डोमेन का ख्याल करते हैं. डोमेन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का डिफाइंड होता है, तो पुट करके जरूर देखो x की वैल्यू को कि कहीं log 0 या log नेगेटिव तो नहीं आ रहा नंबर का, तो फिर वो केस भी रिजेक्ट हो जाएगा. राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट दिस वन नाउ. Next question on your screen, let's us read. If sigma k varying from 1 to 10 f of a plus k is equal to 16 times 2 raised per 10 minus 1, where function f satisfies this condition, f of x plus y is fx into fy for all natural numbers xy, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू वी आर गिवन 2, तो आपको नेचुरल नंबर a बताना है किसके इक्वल होगा. एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2019. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन फॉर दिस. ठीक है, सो नाउ वी प्रोसीड टू द सॉल्यूशन. अब देखो दिया क्या है. वी आर गिवन दैट सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 f of a plus k is equal to 16 times 2 raised per 10 minus 1. Okay, let us call it as 1. अभी इसको 1 कह देते हैं, इसको यूज करेंगे. अब देखो हमें फंक्शन जानना है पहले कि क्या होगा.
फंक्शन कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको ये कंडीशन दी है. What are we given? We are given that f of x plus y is equal to fx into fy for all natural numbers xy. मतलब for all xy belonging to n. अब कौन सा फंक्शन होता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? ये फंक्शंस में करते हैं हम कि अलग अलग टाइप की फंक्शनल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो विच फंक्शन सेटिस्फाइज दिस? fx is of the type, this implies it will be of the type lambda raised power x. क्यों? देखो, जैसे अगर आप f of x plus y लोगे, इसमें क्या आ जाएगा? It will be of the form lambda power x plus y. ठीक है ना? अगर यहाँ पे x की जगह है x plus y, तो राइट साइड पे भी x की जगह x plus y आएगा. ठीक है, तो इसको अगर आप स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा? It will be lambda raised power x इंटू लैम्डा रेस पर वाई. लिख सकते हैं ना? तो लैम्डा रेस पर एक्स हो गया आपका फंक्शन एफ एक्स और लैम्डा रेस पर वाई एफ ऑफ वाई. तो ये फंक्शन इस कंडीशन को आप देख सकते हो सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. अब देखो, सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम ये लैम्डा निकालें. जो बेस पे लैम्डा है इसको निकालना है. इसको निकालने के लिए आपको एक क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है. क्या दिया है? देखो ये वाली कि f of 1 is 2. वी आर गिवन दैट 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है. तो इसको अगर हम मान लो 2 कह देते हैं, क्योंकि बेटा आपको फंक्शन की वैल्यू 1 पे दी है, तो आप क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 1 इन 2. ठीक है ना? तो यहां पे x को 1 पुट कर देते हैं. So we get f of 1 is equal to lambda raise पर 1. अब f of 1 तो हमें 2 दिया है, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2. ऑलराइट, सो फ्रॉम 2 we get कि फंक्शन हमें मिल गया कि f of x फंक्शन इज इक्वल टू 2 रेज पर x. तो हमें यह पता चल गया हमारा फंक्शन क्या है. इज इट ओके? अब देखो हम 1 पे आते हैं. ये जो हमने देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये जो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसकी लेफ्ट साइड देखो पहले. लेट अस कैलकुलेट जस्ट द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेट अस डू दैट. तो वी हैव सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to 10. ऑलराइट, सो लेट अस टेक सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to 10. व्हाट डू वी हैव? f of a plus k. यही है ना? अब देखो फंक्शन आपका ये है f of x इज इक्वल टू 2 रेज पर x. तो f of a plus k देखो क्या हो जाएगा, यहां पुट करो. तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to 10. अब फंक्शन में पता चल गया ना क्या है फंक्शन? 2 रेज पर x. तो x के बदले में बेटा अगर आपके पास a plus k है, तो राइट साइड पे भी 2 की पावर में हमारे पास क्या हो जाएगा? a plus k. तो इट इज 2 रेज पर a plus k. Now this can be written as sigma k varying from 1 to 10. इसको स्प्लिट कर लो 2 रेज पर a into 2 रेज पर k. Now notice one thing, k वेरी कर रहा है बेटा हमारा, a नहीं वेरी कर रहा. तो इसका मतलब ये जो 2 रेज पर a है दैट इज कांस्टेंट. ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा. तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको आप समेशन के बाहर ला सकते हो. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज पर a सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 2 रेज पर k. अब हम k को देखो वेरी करते हैं, तो वी हैव 2 रेज पर a इंटू 2 रेज पर 1. k कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से लेकर 10 तक. तो पुट कर दो और समेशन का मतलब बीच में, सिग्मा का मतलब बीच में सम डालते जाओ. 2 रेज पर 1, 2 रेज पर 2, 2 रेज पर 3. वी हैव टू गो अप टिल 2 रेज पर 10. अब आप नोटिस कर सकते हो कि ये हमारी सीरीज जो है दिस इज नथिंग बट जीपी. तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 10. तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं बेटा? 10 टर्म्स हैं. सो लेट्स फाइंड द सम. सो वी कैन राइट इट एज this will be equal to 2 raised per a. Let us apply the formula for sum up to n terms of GP. a into r raised per n minus 1 divided by r minus 1. ये हो जाएगा.
तो कितना हो गया देखो, इट इज 2 रेस पर a इंटू 2 इंटू 2 रेस पर 10 minus 1 and divided by 2 minus 1. Got it? So what do we get? यहां पे देखो आप ये वाली टर्म्स कंबाइन कर लो, 2 रेस पर a इंटू 2, दिस कैन बी कंबाइंड. ऑल राइट, तो अगर हमने इसको कंबाइन किया, वी आर गेटिंग इट इक्वल टू 2 रेस पर a प्लस 1 इंटू 2 रेस पर 10 माइनस 1. तो ये आ गया. तो दिस इज इक्वल टू द सम. अब आप 1 में देखो, ये सम आपको कितना दिया हुआ है, नोटिस हेयर, ये देखो 1. आई होप यू कैन नाउ सी ऑन द स्क्रीन. यही सम की बात हो रही है ना जो हमने कैलकुलेट किया है बेटा. ये सम किसके इक्वल है? इट इज गिवन टू बी 16 इंटू 2 रेस पर 10 माइनस 1. तो लेट्स यूज इट. वी कैन से दैट नाउ फ्रॉम 1 we get this sum 2 raised per a plus 1 into 2 raised per 10 minus 1 is equal to 16 into 2 raised per 10 minus 1. तो small a निकालना था ना. Now you can see that this factor will get cancelled. So 2 raised per a plus 1 is equal to 2 raised per 4. 16 is 2 raised per 4. That means a plus 1 is 4. And that gives you value of a as 3. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई बेटा. ठीक है, आई ना. तो यहां से हमें a की वैल्यू मिली. तो पहले हमने क्या किया, फंक्शनल हमने इक्वेशन यूज करके बेटा पहले तो फंक्शन का पता लगाया कि कौन सा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो हमें दी थी यहां पे, ये वाली कि f of x plus y is fx into fy. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई करता है जिसमें बेस कुछ भी हो सकता है. यहां पे देखो मैंने आपको बताया भी है कि अगर ये फंक्शन है तो f of x plus y is fx into fy. तो लैम्डा कैसे निकाला बेस? बाय यूजिंग f of 1 is 2. तो x फंक्शन की वैल्यू 1 पे दी थी, सो वी पुट x इक्वल टू 1. तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, फंक्शन पता चल गया. फिर आगे सिंप्लीफाई करो, जीपी बन रही है. जीपी की एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने हमारा ये जो गिवन था रिजल्ट, इसको हमने यूज किया. ऑल राइट, दिस वन. और कंपेयर करके वी ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ a एज 3. लेट्स चेक द ऑप्शन. कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? देखो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑल राइट, तो यहां पे हमारी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी. तो दिस वाज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, आप देख रहे हो ना प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है. लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली. For any 3 positive real numbers ABC, we have if 9 into 25a square plus b square plus 25 into c square minus 3ac is 15b times 3a plus c. तो आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. BCA GP में है या BCA AP में है, ABC are in AP और ABC are in GP. And this question is from JEE Mains 2017. All right. So let's now do the solution for this one. तो अब हम करते हैं इस question का solution. Let's write what is given to us. तो first of all we are given कि ये positive real numbers हैं ABC. तो we are given ABC are पॉजिटिव रियल नंबर्स. ऑल राइट, मतलब R प्लस से भी डिनोट करते हैं जब ऐसे दिया होता है ना बेटा पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. इस बात को कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि ABC बिलोंग टू R प्लस. R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स. एंड व्हाट इज द इक्वेशन गिवन टू अस? ये इक्वेशन हमें दी है. लेट अस राइट इट. आई हैव 9 इंटू 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus 25 times c square minus 3ac is equal to 15b times 3a plus c. तो आपको ना एक रिलेशन गिवन है in terms of a, b and c. Now using this relation we have to obtain कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. Now first of all we are going to open the brackets over here, right? So let me open the brackets. We get this as 225a square plus 9b square
प्लस 25c स्क्वायर माइनस 75ac इज इक्वल टू, इसको भी चाहे इधर ले आओ, माइनस 15 3 45ab माइनस 15bc इज इक्वल टू 0। अब पता है एक बात बताती हूँ, जब भी आपके पास ऐसे कुछ रियल नंबर्स दिए होते हैं ना, ये जैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन है और इस तरीके से आपको स्क्वायर वाली टर्म्स देख रहे हो, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ए सी ए बी बी सी वाली टर्म्स दी हो, तो ना इट इज अ हिंट कि वी हैव टू मेक परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स में ही ऐसा होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस टाइप की टर्म्स कहाँ आती हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स में आती हैं, तो ये हमारे लिए हिंट होती है। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे जैसे 225a स्क्वायर है, तो ना राइट साइड यहाँ पे देखो, इसी एक्सप्रेशन में आपके पास जो a है ना वो इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, दो जगह पे हमारे पास a है। इज इट ऑल राइट? ऐसे ही आपके पास जैसे 9b स्क्वायर है ना, तो b भी हमारे पास बेटा दो जगह पे है, इस टर्म में भी देखो b है, यहां भी b है। सिमिलरली इफ यू हैव 25c स्क्वायर, c इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। तो इससे हम क्या हिंट लेते हैं, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस अबव एक्सप्रेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो जाएगा। अब जैसे ये 225a स्क्वायर दो बार आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 225a स्क्वायर प्लस 225a स्क्वायर। ऑल राइट, 9b स्क्वायर ये भी दो बार आएगा, तो 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। सिमिलरली 25c स्क्वायर विल कम 2 times, so I have 25c स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। आगे देखो, अब ये टर्म कितनी बनी, माइनस 75ac को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 150ac। फिर माइनस 45ab वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 90ab। फिर माइनस 15bc वाली टर्म को करोगे, माइनस 30bc इज इक्वल टू 0। नाउ नोटिस वन थिंग, नाउ वी विल बी एबल टू चेक द परफेक्ट स्क्वायर्स। इन टर्म्स को देखो जरा, 225a स्क्वायर फिर 9b स्क्वायर, ए बी वाली टर्म हमारे पास ये है, इनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑल राइट, सो इन द फर्स्ट ब्रैकेट आई एम गोइंग टू राइट 225a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एंड माइनस 90ab। आप देखोगे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से अब ये टर्म्स देखो, लुक एट दीज टर्म्स, 225a स्क्वायर, अब ले लो c वाली टर्म 25c स्क्वायर, तो साथ में ये कंबाइन होगा माइनस 150ac। सो लेट्स राइट, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम ये तीन टर्म्स लिखते हैं, 225a स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर एंड माइनस 150ac। गॉट इट? अब रिमेनिंग टर्म्स देखो यहाँ पे, आई हैव 9b स्क्वायर 25c square and minus 30bc. Now let us combine these terms. अब हम इन terms को combine करते हैं. So we are getting in the third bracket what? 9b square plus 25c square and minus 30bc, and this is equal to 0. All right. Now let us see what do we have in brackets. अब पहला bracket देखो, ये वाला, इसमें आप देख रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है देखो, वी हैव 15, यहां पे 225a है, a स्क्वायर है ना, तो इट इज 15a माइनस 3b का स्क्वायर। खोल के देखो, 15a का स्क्वायर 225a स्क्वायर, फिर प्लस 9b स्क्वायर और माइनस 15 3 45, 45 2 90ab। इसी तरह से अगला देखो, ये बनेगा 15a माइनस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी टर्म्स, ये वाली टर्म्स। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है। सिमिलरली लुक एट द थर्ड वन, तीसरा ब्रैकेट बेटा हमारे पास है 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर एंड दिस सम इज इक्वल टू 0। तो तीसरे वाला इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब नोटिस करो जो हमें बात दी थी कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहां पे देखो,
Look at this. We are given A, B, C are positive real numbers. अब आपको पता है कि अगर positive real numbers हैं तो अगर आप इनको आपस में माइनस कर लो, ठीक है, तो या तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और रियल नंबर होगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, इट इज नेवर नेगेटिव. तो इस बात को हम यहां पे कैसे अप्लाई करने वाले हैं? नोटिस वन थिंग कि ये तीनों आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये भी और ये भी, और राइट साइड पे सम जीरो है. या तो सम जीरो तब होता है जब कुछ टर्म्स पॉजिटिव होती हैं बेटा, कुछ नेगेटिव होती हैं. अब क्योंकि ये तीनों टर्म्स आपकी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो इनमें से कोई भी टर्म नेगेटिव तो होगी नहीं. तो सम जीरो कब बनेगा? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, व्हेन ईच टर्म इज जीरो. इज इट ऑल राइट? हर टर्म को जीरो होना पड़ेगा. सो व्हाट डू वी गेट? पहली टर्म को जीरो पुट कर रहे हो, वी आर गेटिंग 15a इज इक्वल टू 3b. एंड तीनों रिजल्ट्स इकट्ठे मिलने चाहिए. 15a इज इक्वल टू 5c एंड वी आर गेटिंग 3b इज इक्वल टू 5c. तो इससे हमें क्या मिला तीनों को कंबाइन करके कि 15a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c. राइट, वी आर गेटिंग दिस. तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट. अब देखो हमें पता लगाना है कि ABC किस में है ना. तो लेट्स सी, इसमें आप नोटिस करो एलसीएम आपका 15 है, तो लेट अस डिवाइड बाय 15. कोफिशिएंट्स का एलसीएम 15 है ना. सो व्हाट डू वी गेट? A अपॉन 1 इज इक्वल टू B अपॉन 5 इज इक्वल टू C अपॉन 3. एक काम करते हैं, इसको ना मान लो किसी नंबर K के इक्वल पुट कर लेते हैं. नोटिस करो A हो गया आपका K. अब पहले C देखो, C is 3k and B is 5k. Now notice these terms, k, 3k and 5k. ये तीनों नंबर्स किस में हैं? AP में. कॉमन डिफरेंस 2k हो गया. तो अगर ये AP में है, this implies A, C, B are in AP. अगर देखो कोई तीन नंबर्स AP में होते हैं ना, तो अगर आप AP को रिवर्स कर लो तो फिर से AP ही रहेगी, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है. तो ये AP में होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं और इनको रिवर्स कर लो, B, C, A are in AP. ऑलराइट, सो आइदर ACB are in AP. तो दो रिजल्ट्स हैं, ऑप्शंस चेक करते हैं. तो आइदर ACB AP में कह सकते हैं या फिर बेटा BCA will be in AP. राइट, सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. और ये जेईई मेन जैसे मैंने कहा 2017 का है, तो देखो ये ऑप्शन दी हुई है आपको, ऑब्जर्व करो, BCA are in AP. ये थी ना वन ऑफ द ऑप्शंस. या तो हमने कहा था ACB AP में है, या फिर उसको रिवर्स कर लें तो फिर से AP मिलती है. तो BCA are in AP, that means B option is correct. All right, so this was the question from JEE Mains 2017. Okay, now let us see one more question. Now look at this question on your screen. इसमें देखो क्या गिवन है आपको. Let's read the question carefully. If alpha, beta, gamma are three consecutive terms of a non-constant GP. Non-constant GP का मतलब GP में सारी टर्म्स सेम नहीं है. इसका मतलब क्या होता है कि कॉमन रेशो आपकी is not equal to 1. क्योंकि GP में when common ratio is 1, you know that GP is of constant terms. And we are given that these two equations have a common root. पता है GP का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बहुत बार आया है. ठीक है, तो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस ही है. तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉमन रूट है. यू हैव डन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट, मतलब एक रूट दोनों में कॉमन है. फिर हमें बताना है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इनमें से किसके इक्वल होगा, और अल्फा बीटा हमारी टर्म्स किस में है? जीपी में है. एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. राइट, सो नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दैट अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, और एज्यूम कर लो कि लेट कॉमन रेशो बी आर. मान लो इनकी कॉमन रेशो आर है, और क्योंकि नॉन कांस्टेंट जीपी है तो मतलब आर विल नॉट बी इक्वल टू 1. ये हमें पता चला.
अब देखो जीपी में अगली टर्म कैसे मिलती है, आर से मल्टीप्लाई करके। तो अगर ये जीपी में है और मान लो अल्फा इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट टर्म हम कंसिडर कर लेते हैं, तो अगली टर्म इसका मतलब बीटा क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू आर, और उससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू आर स्क्वायर। सो बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा आर एंड गामा कैन बी रिटन एज अल्फा आर स्क्वायर। Now let us look at this first quadratic equation which is given. क्या quadratic equation दी है देखो, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0. तो लेट अस पुट हेयर वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा, ये जो हमने निकाली है, बीटा इज अल्फा आर एंड गामा इज अल्फा आर स्क्वायर, यहां पुट कर देते हैं। तो आई हैव अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 times alpha r x plus alpha r square is equal to 0. What is common? Alpha. So let us take alpha common. So we have x square plus 2 rx and plus r square is equal to 0. आपको याद होगा when we had done GP, I told you GP में बेटा कोई भी टर्म कभी जीरो नहीं होती, ऑल टर्म्स आर नॉन जीरो। तो क्योंकि अल्फा बीटा गामा GP में है तो यहाँ पे अल्फा है, तो दिस अल्फा विल बी नॉन जीरो। तो अगर अल्फा आपका नॉन जीरो है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये वाला एक्सप्रेशन आपका किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो लेते हैं इसको जीरो। सो वी आर गेटिंग, अब ये बन क्या रहा है देखो, ये दिस इज परफेक्ट स्क्वायर किसका, x प्लस आर का होल स्क्वायर इज 0। जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो मतलब रूट्स इक्वल होंगे, तो इस इक्वेशन के आपके दो रूट्स आ गए एंड बोथ आर इक्वल। व्हाट आर द टू रूट्स, माइनस आर एंड माइनस आर। इज इट ओके? नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, व्हाट इज गिवन इन द इक्वेशन, वी आर गिवन दैट दीज टू इक्वेशंस हैव कॉमन रूट, इनका कॉमन रूट है। तो अगर पहली इक्वेशन के दोनों रूट्स ही माइनस आर हैं तो माइनस आर दूसरी इक्वेशन का भी रूट होगा, ठीक है ना, बोथ रूट्स विल बी कॉमन। सो लेट अस टेक नाउ, क्योंकि पहली इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या आए हैं, माइनस आर, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वी हैव सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर कितना प्लस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस आर इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कॉमन रूट है और दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो पुट करो, सेटिस्फाई करने का मतलब है वी कैन रिप्लेस x बाय माइनस आर। सो दैट मीन्स वी हैव माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? दिस इज व्हाट वी गेट। सो यहां से देखो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 1, ये हमें रिजल्ट मिल गया। लेट अस कॉल इट एज 1। सो आर स्क्वायर इज आर प्लस 1। अब देखो निकालना क्या था, व्हाट डिड वी हैव टू फाइंड, हमें चाहिए ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में चाहिए, देख रहे हो ऑप्शंस। तो वी रिक्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। तो लेट अस ऑब्टेन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। अब एक काम करते हैं, बीटा गामा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बीटा कितना था, अल्फा आर, एंड गामा वॉज अल्फा आर स्क्वायर। व्हाट इज कॉमन, वी हैव अल्फा इंटू अल्फा आर कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, 1 प्लस आर। अब आप नोटिस करो ये जो 1 प्लस आर है ये यही तो है, and it is equal to r square. So this 1 plus r can be replaced by r square. So we get alpha square into r square. एक काम करते हैं, जैसे इसको दो में स्प्लिट कर लेते हैं, अल्फा r और अल्फा r square. Is it okay? What was alpha r? कितना था हमारा बीटा, and alpha r square was gamma. Is it okay? तो हमें क्या मिला, look here, we are getting alpha into beta plus gamma is equal to beta gamma, ठीक है ना, तो बीटा गामा के इक्वल आ गया। लेट अस चेक द ऑप्शन। सो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, ये देखो आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है बीटा गामा। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑलराइट, सो व्हाट हैव वी डन इन दिस लेक्चर, we did first of all properties of GP,
Okay, you saw some of the properties were similar to that of AP and some were different. All right, and then we did selection of terms in GP कि अगर आपको product given है 3 terms का, 4 terms का, 5 terms का, then how should we select the term so that it is easier to solve the question. Okay, and after that we have done some questions on properties of GP. So that is all in this lecture. I hope you will enjoy the benefit of your courses. Okay, so go through the lecture very carefully. Thank you and bye bye. Rest we continue in the next one.